Welcome back students to my another video and my channel for business studies. Today we are going to discuss the second part of industries, that is secondary industry. The secondary industry is further categorized into manufacturing and construction. First we are going to take up what manufacturing industry is. There are four types of industries for manufacturing, that is analytical, synthetical, processing and assembling. Let us look at the few pictures and try to identify what industry falls for each picture. First, we will take a slideshow for all these pictures, and then with the help of explanation of these pictures, I am going to give a single line definition for these industries, and then you will categorize each of these pictures to their corresponding industry. Okay, so first picture is of fractional distillation of crude oil. As you all know what is fractional distillation, we are going to take out or categorize different types of subparts or byproducts that can be made or acquired by using the fractional distillation method of crude oil. कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं, उस तेल को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हीटिंग पे रखते हैं और उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो वी गेट पेट्रोलियम गैस, वी गेट गैसोलीन, we also get paraffin, fuel oil, lubricating oil, diesel, bitumen. और यहाँ पर हमने रखा हुआ है क्रूड ऑयल. ये क्रूड ऑयल जब फर्नेस में से गया, look at the bottom of the picture, the brown or black box in the left hand side is your crude oil. When this crude oil is going, it is giving so much byparts, so much subparts like gasoline, petroleum, paraffin, diesel, bitumen. Okay. Now move towards the next picture. This is actually the mixture of limestone, gypsum, calcium, and then we are getting this ash brick. This ash brick, fly ash brick, is done by mixing fly ash, lime, gypsum, quarry dust. इन सब चीजों को जब हमने मिलाया तो उसके बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आया? फ्लाई एश ब्रिक, जिसको बनते हुए मैंने आपको दिखाया कि कब इन चीजों को मिक्स किया गया और फिर उसके बाद आपके पास फ्लाई एश ब्रिक बनकर तैयार हुई. यहाँ हमने क्या किया? बहुत सारी चीजों को मिलाकर कोई एक चीज बनाई है. वेयर एज इन द प्रीवियस पिक्चर ऑफ क्रूड ऑयल, वहां हमने एक क्रूड ऑयल से बहुत सारे नए पार्ट्स निकाले हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल. इन फ्रंट ऑफ यू इज द पिक्चर ऑफ अ शुगर केन. उस शुगर केन से आगे शुगर क्रिस्टल्स कैसे बने हैं, इसको बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर क्रिस्टल्स फ्रॉम शुगर केन इज इन फ्रंट ऑफ यू. दैट वी हैव जस्ट कलेक्टेड द शुगर केन्स and then this is transported to the factory where different type of processes are undertaken like this. You need not memorize it, just look at the process. There is a complete process from the farm where sugar canes are collected and then you get the bag full of sugar crystals. So this is a kind of process जहां एक काम को करने में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस मेथड्स वेज थे, जिसको पूरा करने के बाद ही एंड रिजल्ट सामने आएगा. दैट वाज अ थर्ड एग्जाम्पल. वन वाज क्रूड ऑयल, सेकेंड वाज एश ब्रिक जहां हमने चीजें मिलाकर एक ईंट बनाई थी, एंड थर्ड इज फ्रॉम हाउ यू आर गोइंग टू मेक शुगर क्रिस्टल्स फ्रॉम द रॉ शुगर केन. Coming back to fourth example, look at these ladies. They are very much engrossed in doing their work in a biscuit factory. Here they are doing an assembly line function. यहाँ पर क्या हो रहा है? एक assembly line function हो रहा है जहां पर सारी चीजों के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्रिएट किया गया है. हर एक चीज का मेथड है, कौन सी चीज पहले कहाँ जाएगी और किस तरह से लगेगी, वो एक असेंबली लाइन फंक्शन में दिखाया जाता है. ये हम जनरली फूड प्रोडक्ट फैक्ट्रीज में देख सकते हैं, बेकरीज में देख सकते हैं असेंबली लाइन, ऑटोमोबाइल्स में देख सकते हैं जहां एक मशीन को बनाने के लिए किस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अंडरटेक किया जाता है. सबसे पहले उन सब के लिए
रॉ मटेरियल या बॉडी तैयार होगी, देन यू हैव टू फिट इन द इंजन, देन यू हैव टू पुट द सीट्स एंड देन everything will be done, then only a particular vehicle will be completed. Similarly for this biscuit there has to be a mixing of flour, वो सारा आटा मिलेगा, उसमें कुछ चीजें डाली जाएंगी, वो मशीन में जाएगा और एक ही तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक मशीन से निकलकर सामने लगते जाएंगे. ये सब मैनुअली नहीं किया गया, मशीन से किया गया. All these things when combined in a uniformed and disciplined manner according to assembly line function, जैसे आप अपने स्कूल की असेंबली में खड़े होते हैं बिल्कुल सीधे लाइन लगा के, उसी तरह से सारे प्रोडक्ट्स उसी तरह से तैयार होते हैं, उसे हम असेंबलिंग बोलते हैं. ठीक है. नाउ वी गो बैक टू द थ्योरी पार्ट विद द रेफरेंस ऑफ दीज पिक्चर्स. ये चारों इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग? इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स और पार्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल का मिलना, जैसे शुगर केन से शुगर का मिलना, असेंबली लाइन में रॉ मटेरियल से एक पर्टिकुलर पूरा व्हीकल तैयार हो जाना, और लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल, एश, इन सब से एक एश ब्रिक का बनकर तैयार होना. दिस इज हाउ यू आर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स और पार्टली फिनिश्ड मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. दिस इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डज. So now coming to the theory part of analytical industry. Analytical industry helps in producing out many products from one thing, where there is one basic raw material which is analyzed, which is studied, and then it is separated into different products. क्या बताया मैंने यहाँ पर? एक प्रोडक्ट को लिया जाता है, उसको पढ़ा समझा जाता है, एंड देन इट इज बीइंग सेपरेटेड इनटू इट्स मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऑयल के बारे में पढ़ा, here in an oil refinery crude oil is actually separated into number of products like diesel, petrol, lubricating oil and gasoline. तो यहाँ कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है? एनालिटिकल इंडस्ट्री. आप एरोज देख रहे हैं, बीच में 6-7 एरोज बने हैं. इसी से अपने दिमाग में इमेज याद करेंगे कि एक प्रोडक्ट था सेंटर में और उसके हमारे पास बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बन के आ गए. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पिक्चराइज इन आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल इंडस्ट्री. देन देयर इज सिंथेटिक इंडस्ट्री. आपने सिंथेटिक फैब्रिक के बारे में सुना है? यू हैव एवर हर्ड अबाउट व्हाट इज सिंथेटिक मटेरियल? बोलते ना, नहीं ये तो कॉटन नहीं है, ये सिंथेटिक है, इसमें कुछ मिक्स है. उसी बात को हमेशा दिमाग में रखना. सिंथेटिक मीन्स कुछ मिक्स है. तो जैसे हमने एनालिटिकल में एक चीज को बहुत सारी चीजों में तोड़ा था, सिंथेटिक में हम बहुत सारी चीजें मिलाकर कोई एक पर्टिकुलर चीज बनाएंगे. रिमेंबर एन एग्जाम्पल गिवन बाय मी फॉर एश ब्रिक. एश ब्रिक में हमने बहुत सारे मटीरियल मिलाए थे और उससे फ्लाई एश, लाइम, जिप्सम, क्वारी डस्ट, इससे क्या बना? फ्लाई एश brick. This is the example of synthetic industry. When two or more materials are combined to produce a new product, then it is called synthetic industry. Another example, cement is also produced by mixing concrete, gypsum and coal. Cement भी बनाने के लिए ये सारी चीजें मिक्स करी जाती हैं. और कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपके पेपर में आते हैं तो उसके लिए है जैसे कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, सोप्स, पेंट, जो आप वॉल पर पेंट करते हैं, ये सारी चीजें सिंथेटिक है. दे आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. Now very easy, coming to the third topic of manufacturing industry, which is processing industry. Processing industry is an industry in which all the raw materials are processed through various stages of productions. आपने क्या करा, एक रॉ मटेरियल को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में आने के लिए. जबकि असेंबलिंग में भी आपको यही लग रहा होगा कि ऑटोमोबाइल व्हीकल को बनाने के लिए सेम चीज को बार बार प्रोसेस किया जा रहा है. नो, एक बार उसकी बॉडी बनाई है कार की, एक बार सीट्स बनाई है, एक बार इंजन बनाया, दैट इज डिफरेंट थिंग. हमें एक रूटीन बताया गया कि काम को किस तरह से करना है. वेयर एज प्रोसेसिंग के अंदर आप एक रॉ मटेरियल से स्टार्ट हुए, उसे बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू अंडरगॉन करवाया, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट विच वॉज शुगर फ्रॉम शुगर केन, where the process of making sugar has to complete a full process. A particular sugar cane, that is the raw material, has to undergo various stages of production, and then only we will get the final product, which is a bag full of
sugar. There are many more examples for processing industry, like how we are going to generate a cotton thread or a cotton fabric from a crop which is known as कॉटन प्लांट. एक कॉटन के प्लांट से आप क्या निकालते हो, धागे के रेशे, फिर धागा बनता है, देन फैब्रिक बनता है उन धागों को जोड़कर. दिस इज कंप्लीट कॉटन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां कॉटन को स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, इन सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है टू बिकम अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ कंप्लीट क्लोथ. ठीक है, दिस इज व्हाट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज. And in assembling industry, all the manufactured parts जो पहले से बन चुके हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उनको हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. लाइक यू हैव टू असेंबल अ कंप्यूटर. हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर कैसा लिया, असेंबल कराया या पूरा खरीदा, एंड वी से कि हमने असेंबल कराया, यानी कि वी आर परचेजिंग मॉनिटर फ्रॉम सम अदर पर्सन, स्पीकर फ्रॉम समवन एल्स, यूपीएस फ्रॉम समवन एल्स, कीबोर्ड अलग जगह से, माउस अलग कंपनी का. तो वी आर गोइंग टू गेट अ कंप्लीट गुड मिक्स ऑफ दैट कंप्यूटर डेस्कटॉप. ठीक है, उसी तरह से असेंबलिंग इंडस्ट्री भी क्या करती है, कार बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए या बाइसिकल्स के लिए, वो सारे पार्ट्स एक अच्छी जगह से खरीद कर लाती है या खुद मैन्युफैक्चर करती है, जनरली खरीद कर लाती है फ्रॉम ऑल द ब्रांडेड शॉप्स, एंड देन दे आर गोइंग टू असेंबल इट, कन्वर्ट इट इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट. इस तरह से आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है. So are we through with analytical industry, synthetical industry, processing and assembling? I think we are. Now we should move towards the construction industry. Construction, as the name suggests, it is concerned with the construction of buildings, roads, flyovers, dams and canals, etc. Actually these industries use the products of manufacturing industry. कौन से products use करेगी ये? मैन्युफैक्चरिंग के. फटाफट एग्जाम्पल बताओ. जैसे अगर किसी को बिल्डिंग बनानी है और सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट कौन सी इंडस्ट्री ने बनाया है? सीमेंट कैसे बनेगा? मिक्स होके बहुत सारी चीजों का अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है. तो एनालिटिकल में मिक्सिंग होती है या सिंथेटिकल में मिक्सिंग होती है? सिंथेटिकल में मिक्सिंग होती है. गुड. These industries are using the manufactured parts, manufactured materials from the manufacturing industry. जिसने मैन्युफैक्चर करा है उसी का रॉ मटेरियल, उसी के फिनिश प्रोडक्ट्स यूज करे जाएंगे और वो इनके लिए रॉ मटेरियल होगा. समझ आ रही है बात? अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए सीमेंट एक फाइनल प्रोडक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए वही सीमेंट एक रॉ मटेरियल है जिससे वो ब्रिज बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे. ओके. These industries are using the products of manufacturing industries, like they are using steel, they are using cements, bricks हमने कहाँ बनाई? Synthetic में ही बनाई. Okay. They also use some parts of products of extractive industry also, like stone और coal. Stone और coal कहाँ से आया था? Extractive industry से हमने mining और quarrying से coal निकाला, stones की quarrying करी. ठीक है, और फिर स्टील, सीमेंट वगैरह कहाँ से आया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आया. सो बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर यूज्ड इन दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. और जनरली जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनाती है, दे आर इमूवेबल एंड ड्यूरेबल इन नेचर. इनको हिलाया नहीं जा सकता. ये बहुत ही परमानेंट और इमूवेबल टाइप ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे आर जनरली ड्यूरेबल. So today we have completed secondary industry. For the purpose of attendance, you are going to tell me the example that I used in analytical industry and processing industry. अगर एनालिटिकल इंडस्ट्री में मैंने एक्स फूड प्रोडक्ट का नाम यूज करा है या किसी भी प्रोडक्ट का नाम यूज करा है, प्रोसेसिंग में वाई प्रोडक्ट, तो आप मुझे एक्स कॉमा वाई करके ये नाम मैसेज करेंगे. दैट इज द कोड ऑफ योर this video for secondary industry. Name the product that has been taken as an example to make you understand analytical industry, comma, the name of the product that has been used to make you understand the example of processing industry. Thank you so much. Stay safe, stay at home.